Hello everyone. I am very happy to welcome you to my little world of green, my vegetable garden, where every leaf tells a story and every plant is part of my roots. Here I grow a beautiful mix of traditional and healing plants like pattu, mustard, kobe, cabbage, tumpuluk, tomato, bayam, brinjal, and even wild treasures like ogan, Gyanora porcumbens, oik, pojulgia harta, and roram, hutuinia cordata. From mercy, chilies that spice up our food, to taling wild cardamom that fills the air with mountain scent. Every plant has a purpose, a flavor, and a memory from our land. This garden is more than just vegetables. It's a home for traditions, healings, and harmony with nature. I hope you will walk with me through each season, each leaf, and each harvest. And don't forget to like, comment, and subscribe if you would love to explore more from my garden world. दोस्तों, बागान करने के लिए सबसे पहले जंगल को काटना पड़ता है और उसके बाद में उसे जलाना पड़ता है। जलाने का बाद अच्छा से साफ सफाई करना पड़ता है। उसके बाद ही आप सीड डाल सकते हैं। आग जलाना भी कोई मामूली बात नहीं है। बहुत गर्मी होती है। उफ, इतना गर्म। दोस्तों, मैंने अपना गार्डन के लिए एक पोएम लिखा है। पोएम का नाम है माई गार्डन स्पीक्स इन ग्रीन। In the heart of home, where sunlight plays, my garden walks in a golden race. Each leaf a song, each root a rhyme. A world of life in rhythm and time. Pattu sways with mustard bright, while Kobe's cabbage heart grows white. Tumpluk ripens red and round, and Omir waits without a sound. Parrot hums with pots so shy, mercy sparks a fire nearby, bayam purple in the sun, with banco creeping quite spoon. Beneath the soil lies anges grass, while taling sand the mountain's face, ogan glows with healing might, and oik drinks the morning light. Okomamang, dark with gentle bite, Okolivo thrills in oven light. Lompuk's grains like stars they gleam. Okung's dreams in fields still dim. Ongen's leaves so fragrant bold. Podina's mint in morning cold. Gum wing soft and strong, feeds the soul with leafy song. Roram hides with fishy flair, but its roots are wisdom rare, and Kopu Kodu that both two grow like tales our grandmothers knew. Each plant a gift, each seed a prayer, a patch of art with love and care. This garden is not just for food, it's memory, healing, and gratitude. दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरा गोभी का गार्डन, बंदा गोभी का गार्डन, दैट मीन्स कैबेज का गार्डन। अभी इसका पत्ता बंधा नहीं है। दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरा पापाया का ट्री। हिंदी में इसे पपीता कहते हैं और हम आदि में उमर कहते हैं। इसका फल बहुत मीठा है। दोस्तों, ये देखिए, मेरा गोभी अभी बनना शुरू हो गया है। ये है कैबेज। और ये देखिए, ये है तुमपुलुक। इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं, हम आदि में इसे तुमपुलुक कहते हैं।
दोस्तों ये देखिए, ये है रोमाइन लेट्यूस। इसे हम सलाद में और सैंडविच में यूज़ करते हैं। लेटस इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, particularly vitamins A and K। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है होट्यूनिया करडाता। इसका अलग अलग नाम है, जैसे फिश मिंट, फिश लीफ, रेनबो प्लांट, चेमिलियन प्लांट एक्सेट्रा। हम इसे आदि में रोराम कहते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये है ओइक ओइंग यानी ओइक सब्जी। इसका कॉमन नेम है पजुलजो हेरता। इसे हम आदि में ओइक कहते हैं। और ये है पुदीना, इसे मिंट कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत काम आता है, जैसे इंडाइजेशन, गैस प्रॉब्लम, वॉमिटिंग टेंडेंसी, सर्दी खांसी वगैरह में काम आता है। और ये है पागोपायरम एस्कुलेंटम, नॉन एज बाकव्हीट। इसे हम आदि में लम्पुक कहते हैं। ये सब्जी के लिए बहुत अच्छा है। ये है तानिलुम पानिकुलातम। इसे हम पालेंग कहते हैं। और ये है अंगनन्ने, स्वीट पोटैटो लीव्स। और ये है टर्की बेरी। इसका साइंटिफिक नेम है सोलानियम टर्बियम। इसे हम आदि में कोपु, कोडू और ब्याडबो कोपु कहते हैं। यह है ओकोमामांग। इसका नाम है सोलानम निग्रम। यह है पाओ अन्ने पाने। इसे असितपा भी कहते हैं। और ये पम्पकिन का पत्ता है। और यह है जेपोका अपुन, जेपोपोपुन। ये वाइल्ड कार्डामम का फ्लावर है। ये देखने में जैसा सुंदर है, खाने में भी बहुत मज़ा है। और ये है लार्ज कार्डामम का प्लांट। इसे वाइल्ड कार्डामम भी कहते हैं। इसे मैंने 3 साल पहले लगाई थी। पत्ता भी बहुत सुंदर है, ये देखिए। ये है तालुंगासुर, तालुलुसुर। इसे लीपी शूट भी कहते हैं और सुडोस दाम भी कहते हैं। ये जो है नया नया जो लीफी शूट निकलता है, उसे हम सुडोस दाम कहते हैं। ये बॉईल करके खाने के लिए भी बहुत मज़ा होता है और जला के खाने में भी बहुत मज़ा है। ये है अंदर का नरम वाला पार्ट। इसे हम कच्चा से भी खा सकते हैं नमक मिर्चा का साथ, और मीट का साथ बॉईल करने से बहुत मज़ा है। ये देखिए, मैं बॉईल कर रही हूँ। और ये देखिए, अंडा को मैं जला रही हूँ आग में। आग में जलाने से भी बहुत मज़ा होता है। और दोस्तों ये है ओगन ओइंग। इसका नाम है गाइनोरा पोर्कुम्बेंस। और ये है मिर्ची। ये काला वाला मिर्चा है। ये पकने से लाल हो जाता है। ये बहुत जाल है, किंग चिल्ली का 2nd नंबर में आता है। और ये है बैंगन। इसे हम आदि में बायम कहते हैं। इंग्लिश में ब्रिंजल, आदि में बायम। बायम जो है चटनी बनाने से बहुत मज़ा होता है, इसलिए मैं अभी तोड़ रही हूँ। तोड़ के मिर्चा का साथ में पीस के चटनी खाऊंगी। और ये देखिए, मैंने तोड़ दिया, मिर्चा भी तोड़ा है, बैंगन भी तोड़ दिया, और 2 तो पाइनएप्पल भी। और अभी हम यहाँ पे कच्चू का पत्ता में जितना लाल वाला मिर्चा है उसको तोड़ के जमा करके रखा है। बाद में सुखाऊंगी। और ये चटनी बनाने से बहुत मज़ा होता है। बहुत जाल भी है, जैसे देखने में लाल है उतना ही जाल है। और ये है सौराया पुंडुआना का फ्रूट्स। ये बहुत मीठा है। इसे हम आदि में तान कहते हैं। ये तान का आय बहुत मीठा होता है। और ये भी मिर्चा का पेड़ है। ये पत्तांग मिर्चा, चिड़िया मिर्चा का पेड़ है। बहुत छोटा छोटा होता है इसका मिर्चा। और ये पका हुआ काला मिर्चा लाल हो गया, यहाँ पे देखिए। और यहाँ भी मैंने बैंगन तोड़ के रखा है और थोड़ा सा मिर्चा।
2-3 दिन का बाद में बैंगन और ये मिर्चा को तोड़ने जाती हूँ मैं बागान में। जल्दी जल्दी निकल जाता है। दोस्तों ये है पिजन पी। आदि में हम इसे पैरेट कहते हैं। इसे दाल भी बना के खाते हैं। ये बहुत मज़ा होता है। और ये है गामोइंग। इसे सारोपोस एंड्रोजाइनस कहते हैं। यह भी सब्जी के लिए बहुत मज़ा है। और ये है कॉर्न का प्लांट। इसे हम सप्पा और हेपा कहते हैं। ये मेज है, मेरा गार्डन का मेज है ये मेरा मेज बागान है। अभी देखिए ये जो है खाने का लायक हो गया है। मज़ा देख रहा है ना। बॉईल करके खाऊंगी मैं। ये बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा से हुआ है। बॉईल करके जला के खाने में बहुत मज़ा होता है। और ये देखिए मैंने तोड़ दिया, मकई को भी तोड़ दिया और प्लम को भी तोड़ दिया। ये प्लम है। और ये है फर्न। इसे डेकिया साग भी कहते हैं और हम आदि में तकांग कहते हैं। मेरा बागान में जितना सब्जी है मैक्सिमम जंगली है। जंगली सब्जी जल्दी नहीं मरता है, इसलिए कोविड का समय में भी हमको सब्जी के लिए तकलीफ नहीं मिला है। दोस्तों ये मेरा फार्म का गार्डन है। ये देखिए, इसे डेकिया साग भी कहते हैं और हमारा आदि में तकांग कहते हैं। ये मेरा फार्म का गार्डन है, अभी निकल रहा है। दोस्तों ये देखिए मेरा ये मिर्चा का गार्डन है और ये पीछे में कच्चू है। इतना बारिश हुआ है हमारा यहाँ, इसलिए पूरा जंगल हो गया। आज थोड़ा साफ किया है, ये देखिए। और यहाँ इतना जंगल हो गया, बारिश का वजह से सफ़ा करने नहीं मिला है, तो आज थोड़ा मैं साफ करने जा रही हूँ। दोस्तों ये देखिए मेरा कुत्ता सब मकई का पत्ता को खा रहे हैं। कुत्ता भी इंसान का जैसा फाइबर ज़रूरी होता है। कभी कभी वो लोग इंडाइजेशन होने से भी पत्ता खाता है और वॉमिटिंग लगने से भी खाता है। और कभी कभी वो लोग एंजाइटी में भी या बोर्डम में भी पत्ता खाने लगता है। पता नहीं मेरा कुत्ता सबको क्या हुआ है। सबको एंजाइटी तो नहीं होना चाहिए, और ऐसा लगता है सब फाइबर ज़रूरी है, सबको फाइबर चाहिए। ये है मस्टर्ड सीड। धूप में सुखाने का बाद में मिल में ले जाएंगे
मिल में ले जाके पीसेगा और एम ऑयल बनाएगा, तेल बन जाएगा ये। दोस्तों ये है बांको, इसका नाम है सोलानम स्पाइरल। ये अभी फूल खिल रही है और ये है इसका फ्रूट। और दोस्तों ये है ओकोलिवो, इसका नाम है ढिरिंगिया अमारंथोइड्स। इसे भी मैंने अपना बागान में उगाया है। ये भी सब्जी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज करासोसेपाइलियम क्रिपाइडायोइड्स। इसे हम ऊली या गंडे भी कहते हैं। फाइनली ये है केलिडोडेंड्रुम ग्लैंडुलोसम। इसे हम ओइन या ओंगिन कहते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है।